Assalamu alaikum. We're going to start off with basic trigonometry today, and after we're done with basic trigonometry, we're going to go on to further trigonometry as well. Let me show you the breakdown. This is what it looks like. Basic trigonometry will include sine, cos, and tan, and after we're done with that, further trigonometry has all of these subtopics. We've got sine, cos of an obtuse angle, area of a triangle using sine rule, using sine basically, and then sine rule, cosine rule, angle of elevation and depression, and then bearings. I will try to break it down into multiple parts so that you don't have to deal with the entire video all at once. So let's go back to basic trig. Here we go. Trigonometry is a word derived from tri, gon, and metry. Tri stands for three. Gon is basically when you study about polygons, pentagon, heptagon, all of those. It refers to angles and sides of polygons. Metry means measure. So if you read it all at once, trigonometry means the measure of angles and sides of three-sided shapes. Polygon can be a three-sided shape or a three or more sided shape. Anything which is a triangle and beyond, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, they're all polygons. So let's scroll down here. Here we go. Simple trigonometry जो है सो का टुआ या साइन कॉस टैन या some people remember it as um, people have what is it called, and there's another one. Some people have curly hair through proper brushing or something of that sort. Even if you do not know this, don't worry. आप जो जिस चीज़ से comfortable हो, जो स्कूल में लर्न किया है वो इस्तेमाल करो. I'll tell you सो का टुआ दो. सो का टुआ बुक में भी यही यूज़ होता है, तो let's go with that. अब साइन कॉस और टेन हमारे तीन बेसिक वो हैं, व्हाट डू यू कॉल देम, रेशियोज. ठीक है, उनसे अब फायदा क्या होता है कि यू कैन ईदर कैलकुलेट द एंगल और साइड ऑफ अ पॉलीगॉन. लेट्स नॉट गो इनटू टू मच डिटेल कि वो किस तरह बने हैं, बट सो का टुआ में बेसिकली जो साइन कॉस और टेन इनकी डेफिनेट रेशियोज हैं. एक खास एंगल पे एक खास लेंथ की रेशियोज आती हैं. लेट मी टेल यू व्हाट दैट मींस. साइन ओवर हेयर मींस ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. अगर आप इस एंगल इस जहाँ पे खड़े हो और जो वाचिंग लेट्स से ट्री, ठीक है, उस ट्री की हाइट 5 मीटर्स एंड यू स्टैंडिंग 12 मीटर्स अवे फ्रॉम इट. तो आपसे पूछा जाए कि यार ये एंगल बताओ कि ट्री के टॉप पे अगर आपने कोई चीज़ को स्पॉट किया हुआ है, किस एंगल पे है वो, हाउ वुड यू फाइंड दैट एंगल. यहाँ पे साइन का काम आता है. ठीक है, तो साइन वुड मीन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. आई विल राइट दैट डाउन. Sine means opposite over hypotenuse. So here we go. Opposite over hypotenuse. Now opposite of what? Opposite of this angle E. अगर हम A पे खड़े हैं, ठीक है, और इसका साइन निकालना है, मतलब इस एंगल को निकालना है, तो इसके ऑपोजिट क्या है 5. तो इसके एडजेसेंट क्या है, सॉरी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द एंगल ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ऑलवेज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. तो 5 ओवर वट एवर दिस लेंथ इज. हमारे पास ये लेंथ भी नहीं है, वो एक और इशू है. उस लेंथ को कैसे निकालेंगे इफ इट्स राइट एंगल ट्राइंगल थ्रू पाइथागोरस. वेल डन. 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विल गिव अस दिस. लेट अस कैलकुलेट दैट एज वेल. तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट विल गिव अस 13. हमारे पास ये लेंथ आ गई 13. दोज ऑफ यू आर नॉट फेमिलियर विद पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि यू सपोज टू फाइंड, लेट मी इरेज दिस एज वेल, गिव मी अ मिनट. ओके, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. जो ए होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. सिंस हमें ये नहीं गिवन था, we'll just write hypotenuse का square. Hypotenuse is the side opposite to the right angle, right? ये hypotenuse है. b square क्या है, 12 square plus 5 square, और ये आ गया 144 plus 25, that gives us 169. तो I'll write that down over here to avoid cramping up some space. इसका भी square root लेंगे और hypotenuse square का भी square root लेंगे so that we can cancel out this square. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 13. ठीक है, अब लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर. हमने ये एंगल ढूंढना था, तो हमारे पास साइड्स गिवन है. अब साइड्स दो गिवन थी, एक फाइंड कर ली. इन कॉम्बिनेशन दो साइड्स हमारे काम आती हैं. ओ स्टैंड फॉर ऑपोजिट, ए स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज.
ए स्टैंड फॉर एडजेसेंट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज अगेन, और ओ और ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो सो का टो ऐसे अगर याद रख लो तो इट्स ईजी। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज निकालना है। ऑपोजिट इसके क्या है 5, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 13, तो 5/13 आप लिख दोगे। So we have sin of a is equals to 5/13 और हमारा a कितना आ जाएगा sin inverse of 5/13. If you have a calculator, can you give me the value? 5/13 I would prefer कि आप लोग इसको इस तरह लिखो कि आप 5/13 कैलकुलेटर में पहले इनपुट करके उसका आंसर निकाल लो, और अगर उसका आंसर कैलकुलेटर वो पड़ा, हाँ, और वंस उसका आंसर निकाल लो तो फिर उसका साइन इन्वर्स कर लो। there's another, हाँ चलो ये भी ज़रूरी है कि सीख लें। 5/13 तो हमारा आंसर आता है, आई डो नॉट नो इफ इट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन और नॉट, बट सिंपल 5/13 की अब आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद यू नीड टू प्रेस साइन, साइन इनवर्स आ गया और साथ ही आप आंसर दबा दोगे, ठीक है। तो दैट विल गिव यू 22.619, 22.619। आप रिपीट कर लो ये प्रोसेस, हो गया, ये सेम आंसर आ रहा है, चलें गुड। तो this is basic sin cos tan. Once again a little quick recap. Sin cos and tan refers to ratio. Ratio मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप कोई ना कोई दो साइडें डिवाइड कर रहे होगे टू फाइंड अ पर्टिकुलर एंगल, या कभी एंगल गिवन होगा और साइड नहीं होगी। विल डू सम क्वेश्चन लाइक दोस, आपको समझ आ जाएगा। फॉर नाउ सो का टोआ लिख लो। एस रिफर्स टू साइन, सी रिफर्स टू कॉस, दिस इज साइन, दिस इज cos, and this is tan, ठीक है। Let me check, hold on, probably बैटरी लो का सिग्नल आएगा, बट दैट्स ऑल राइट। ओके एंड हाँ, तो ऑपोजिट का भी लिखा हुआ है ओ, एक एडजेसेंट, एंड हैव यू मिस्ड एनीथिंग, एच, एच रिफर्स टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वही जो यहाँ कैलकुलेशन चल रही थी, ठीक है। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। हियर वी गो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स नेम द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? क्यूपी, सिंपल, ठीक है। राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, वेल डन। साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए, साथ वाली, क्यू एंड आर, बट व्हाई नॉट क्यूपी? जबरदस्त, वेल डन। बिकॉज हाइपोटेन्यूज है तो उसका तो ऑलरेडी एक नाम है। इन दोनों एक एडजेसेंट, दोनों ये साइड है, ये और ये एडजेसेंट बेसिकली मीन साथ वाली, बट हमने कौन सी साथ वाली साइड बतानी, इसको ऑलरेडी लेबल नहीं कर चुके, ये तो लेबल्ड हाइपोटेन्यूज है, दिस इज द वन। वेल डन यार, लेट्स राइट दिस डाउन। कैन यू टेल मी द आंसर्स अगेन? हाइपोटेन्यूज क्या था? क्यूपी, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, आरपी, एंड साइड क्यू आर। ओके देन लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये वाला भी बता दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी आपने क्या क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, ठीक है। इसमें वाई एक्स जो है इज अ हाइपोटेन्यूज। अगला आपने बताना है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ऑपोजिट टू एंगल ए इज जेड एक्स, एंड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए वाई जी, वाई नॉट वाई एक्स, हाइपोटेन्यूज है वंस अगेन, तो उसको नहीं आपने दोबारा लेबल करना। अब here we have the concept that we studied a little while ago. तमाम राइट एंगल ट्रायंगल, बाय द वे साइन कॉस और tan सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगता है, राइट। तो ये ज़रूरी है कि अगर हो तब आप ये रेशियो यूज़ कर पाओगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर साइन पी। आपने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, कोई सॉल्व नहीं करना। ये आपका एंगल है, इसका साइन निकालना है। सो में, सो का टुआ के अंदर जो सो था वो ओ क्या था, और एच,
वेल डन, लेट्स राइट दैट डाउन। अगर मैं साइन पी कर रहा हूँ तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, पी का ऑपोजिट क्या है? एक्सीलेंट। और पी का हाइपोटेन्यूज भी बता दो। तो दैट्स योर एक्सप्रेशन y ओवर z। सिंस एक्सप्रेशन कह रहा है तो आपने ये साइड नहीं लिखनी, लेकिन अगर लिख तो दैट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये हमने इक्वेशन बना दी। इक्वेशन होती है इसमें z इक्वल्स टू साइन, दे वर जस्ट आस्किंग फॉर दिस आंसर y ओवर z। तो cos p करते हैं, cos p का एक्सप्रेशन क्या होगा? ओके लेट्स सी। cos p में p ये है, इसका एडजेसेंट है ये, और हाइपोटेन्यूज होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो का टू आया तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट आप कह रहे हो x है और हाइपोटेन्यूज z, तो ये आपका आंसर। वेल डन। सिमिलरली tan p, इसको तो जूम आउट कर लेते हैं सो वी हैव मोर स्पेस। ओके, tan p इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? y, और एडजेसेंट ऑल राइट, tan p opposite of adjacent, that kind of gives us the concept, because हमने sin भी कर लिया, cos भी और tan भी। बाकी sin q जो है, चलो उसको ओरली डिस्कस करते हैं। sin q का आंसर क्या होगा? x over z, opposite over hypotenuse। cos q, हाँ एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, बिकॉज q के एडजेसेंट ये है और इसका हाइपोटेन्यूज ये है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। एंड tan x, ठीक है, इसके ऑपोजिट ये है। tan मींस ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, बिकॉज टोआ था, t उसमें tan था, और o जो है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट x ओवर y। वेल डन, वेल डन। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड नाउ। If you want to, you can also do this question. Take a screenshot of this, those of you who are watching the video. बाद में कर लेना। Here you go. But I don't think we need to do this. Already concept clear हो चुका है काफ़ी। यहाँ पे अब हम उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके ना, we gonna try to find some, what do you call, sides या angles, depending on what they're asking us to do. Sin 67, नहीं वेट होल्ड ऑन, we've been given right angle triangles में 15 hypotenuse है, 67 एंगल है, और ये साइड अननोन है। एनी क्लू व्हाट वी गोइंग टू डू? सो का टोआ में से अगर हम, अब तो ऑब्वियस आंसर सामने नजर आ रहा है, बट व्हाई आर वी यूजिंग साइन? परफेक्ट, ब्यूटीफुल। हमारे पास जो एंगल है ना, उसके ऑपोजिट वाली साइड फाइंड करनी है। तो लेट मी राइट दैट डाउन। ऑपोजिट हमने फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, ठीक है। तो सो का एंटोवा, इसमें से देखो कौन सी दो चीज़ें चेक चेक हो रही हैं हमें? एक तो ऑपोजिट और एक हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज ना इसमें है, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज ना इसमें है, तो वी विल अप्लाई साइन, बिकॉज ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज इसके अंदर है। तो वील राइट साइन 67 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर द हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट की वैल्यू a डाल देंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट 15 हाइपोटेन्यूज है। वी सिंपली व्हाट डू वी डू? वेल डन। 15 साइन 67 अपने कैलकुलेटर्स में आप लोग लिखो, और क्या आंसर आता है? 13.8, एग्जैक्ट 13.8, या कोई आगे वैल्यूज होंगी? 0.75। then why have we rounded it off to 13.8? any idea? वन डेसिमल प्लेस। ज़बरदस्त। जो एंगल्स होते हैं ना, हमेशा दे राउंडेड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस। आई विल राइट दैट डाउन ओवर हियर, राउंड ऑफ angles to 1 dp. Here we go. All right, yeah, let me move the, hold on, solution so that they don't show. Okay, good enough. Here we have another question. इस ट्राइंगल के अंदर तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं वही मेंशन की हुई हैं। हम कंफर्म भी कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। ए बी 8.9, बी ए सी ये राइट एंगल, ए बी सी 56, ये रहा, हाँ ये एच लाइज ऑन बी सी, एच जो है बी सी के ऊपर है।
and AH is perpendicular 90 degree angle बना रहा है to BC. Find the length of AH. Any clue? We could use sine to find AH. और कौन सा एंगल यूज कर रहे हो, ये 56, वेल डन. तो आपने अगर AH निकालना कहोगे sin 56 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. नाउ हाउ डू वी नो कि ये हाइपोटेन्यूज है? if we have a 90 degree angle on a straight line तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा. So that's how we know. ज़बरदस्त. Let me mark it in blue. ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. So I don't think we need to write that again. I'll just pull this up. अगर आप देखो तो बेसिकली आपने यही कहा है कि sin 56 इज इक्वल टू AH जो ऑपोजिट है ओवर हाइपोटेन्यूज. ये वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, AH एज इट इज रहेगा एंड वी गेट 7.3784. इसको भी हमने राउंड ऑफ करना होता है टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास 4th सिग्निफिकेंट फिगर भी हो. तो बेसिकली हमारा थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2 और 3 ये है. थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर ये है जिसपे मैंने लास्ट एरो लगाया. अब इससे आप आगे देखोगे फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर को. सिंस दैट इज बिगर देन 5 तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को सेक्रीफाइस करके 1 इसको लेंड कर देगा. तो 7.38 ये हमारा आंसर है. तो एंगल जो है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर और जो साइड्स हैं मैं लिख देता हूँ. ऑलवेज राउंड ऑफ sides to 3 SF. SF refers to significant figure. Let me correct this number so that you can read it properly. 3 significant. All good? Making sense? All right. अच्छा भाई सॉरी अभी कुछ रहता था. HC हमने ये भी फाइंड करना है. टेक अ मिनट और हाफ अ मिनट एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि HC कैसे होगा. Seven point three seven eight four. 7.37. ये जो मैंने वैल्यू अभी लिख दी है आप कंटिन्यू विद योर वर्किंग. मैंने जो वैल्यू लिखी है ये अभी हमने पार्ट ए से निकाली है तो वी कैन यूज दिस एज वेल. ऑलराइट. tan 34 is the ratio that we're going to go with. Why? Because HC हमारे पास है नहीं और हमारे पास बेसिकली एडजेसेंट नहीं है और ऑपोजिट गिवन है. तो वंस अगेन मैं ऊपर से ये ले आता हूँ सोका टोआ. अब हमारे पास क्या क्या है, I'll write that down. We have this value which is the opposite. इसको हम O कहते होते हैं. And we need to find this which is adjacent. Well done. Adjacent. अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ. कौन सा ऐसे रेशियो है जिसमें ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, O और A? tan. वेल डन. ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ ये O और A अवेलेबल है, ये वाला. तो वील अप्लाई tan. tan अप्लाई किया, वी राइट tan 34 इज इक्वल टू AH ओवर HC. tan 34 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. ये वैल्यू हमारे पास पहले थी, ये हमारे पास है नहीं. तो टेक अ लुक. ये लिखा tan 34 इज इक्वल टू AH ओवर HC. हमारे पास हमने HC फाइंड करना था. अब ये किस तरह हम डील करेंगे, एज की वैल्यू यहाँ लिख दिया. हाउ वुड वी डील विद एज, चीज को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? परफेक्ट. हम एच सी और tan 34 की साइड स्वैप कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे बिकॉज ये तो काम नहीं आ रहा है, इट इज़ एन अननोन. tan 34 को नीचे ले आएंगे और वो अपने कैलकुलेटर में डाल के डिवाइड करना है. दिस इज द आंसर यू शुड एंड अप विद 10.9390 और फिर उसको राउंड ऑफ कर देंगे टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर दैट कम्स आउट टू बी
10.9. All right. Let's stop the video here so that we can make another one for 10C, 11C and beyond.